Roma Talat. She's a digital creator with 115k followers on Instagram. एक हफ्ते बाद people were like DMing me कि oh you're Roma Talat, and I was like what is happening and why is everyone like aware of who I am. 2024 के mid तक I reached 1500 से 100k. मैं गली में खड़े होकर वीडियोस बना रही हूँ, थोड़ा सा डम फील होता है बाय द वे जब आप ऐसे कैमरे के सामने खड़े हुए होते हैं ना. तो आई वाज लाइक अगर मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ व्हाई एम आई नॉट गेटिंग मनी फॉर इट. वो एक तो आपको कपड़े भेजेंगे, फिर वो आपको बोलेंगे कि हमें इतने सेकंड की 4 रील्स चाहिए, उसके साथ हमें जो है वो स्टैटिक पोस्ट भी चाहिए, और अगर सही नहीं हुई तो हम आपसे रीट्राई भी करवाएंगे, रीशूट करवाएंगे विदाउट क्योंकि वो कपड़े भेज रहे हैं. एंड लाइक जैसे हमारे पास कपड़ों की शॉर्टेज है तो But you have your own business, Silknetics, again an amazing thing. So उसके बारे में tell me about it कि किस तरह वो business start हुआ. जो हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं ना बहुत सारे, they need to stop. Exactly, that person. Also the whole astrology वाली चीज़. Exactly. Assalamualaikum everyone, and welcome to today's episode of Life and Lens, where we talk about lifestyle from different angles and talk with those individuals who contribute to it through their passion and creativity. आज का एपिसोड भी बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि आज हमारे पास है एक ऐसी स्पेशल गेस्ट हु इज़ फ्रॉम आवर ओन डिपार्टमेंट, बहरिया यूनिवर्सिटी के मीडिया स्टडीज़ डिपार्टमेंट से, रोमा तलत. शी इज़ अ डिजिटल क्रिएटर जो कि फैशन एंड कंटेंट क्रिएशन में अपना पैशन फॉलो कर रही हैं. शी इज़ ऑल्सो एक्टिव ऑन टिकटॉक, पिंटरेस्ट एंड इवन यूट्यूब. And she's doing it all while still being a student. Roma has her own style which she expresses confidently through her content. So let's welcome her. Assalamu alaikum Roma, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक. Welcome to Life and Lens. Thank you so much for having me. Thank you so much for being here and joining us today. तो रोमा, वैसे तो खैर हम डिजिटल क्रिएशन से रिलेटेड बात करेंगे, हम इन्फ्लुएंसर जर्नी से रिलेटेड भी बात करेंगे, बट बिफोर दैट मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ एज द रोमा यू आर? I feel like there are different, versions to a person. True. If I describe myself as the one that I let other people see and I make myself appear as to other people, it'll be a very, confident type of a person and very content in herself. However, when I describe myself, so I am a very normal person. I am still confident in real life as well, but I like doing all of these things, and I can describe myself as a very humble yet confident person in whatever I do. And what are your hobbies, interests? Like, हर किसी का एक मी टाइम होता है जिसमें बस आप वो करते हो जो आपको रिलैक्सिंग फील करवा सके. So what are those kind of things you do? Okay, so I really like doing बहुत सारी चीज़ें at once, and I basically got it from my mother. Okay. I read a lot, and recently I got back into writing because मुझे याद है मैं बचपन में stories बहुत लिखती थी, but I was so embarrassed of them. I was like कि किसी और को नहीं पढ़नी चाहिए because they were really embarrassing for me. They still are, but I do write now, and I publish my writings as well. उसके अलावा I basically work on my business as well. तो वो सारी चीज़ें it began as like छोटी hobbies, and then I transformed it into an official business. Okay. And then उसके अलावा I do paintings as well, और वो सारी चीज़ें. And then the most favorite thing that I do is कि I like सिलाई वगैरह and like designing. That's very interesting. So most of the clothes I wear, it's either कि वो मैंने खुद बनाए होते हैं या most of the time it's my mom. Wow, that's very impressive. वैसे you have all these interests, right? तो क्या इसका कोई connection है with you choosing media studies over here? I feel like कि मैंने मीडिया करना नहीं था पहले, वैसे मैंने फैशन में ही जाना था, but then my father had this perception about me कि I am really confident and I should become a journalist. Okay. But then I'm doing completely different. मैं अभी journalism में जा ही नहीं रही, मैं films में जा रही हूँ. But he had this thing about me कि Roma is very confident and she is very creative, तो वो ये सब चीज़ें कर लेगी. तो part of the reason why I chose media was because of the creative freedom here. Okay. And also part of the reason was कि my father has so much faith in me. That's amazing. वैसे हम अब अगर इन्फ्लुएंसर जर्नी के ऊपर बात करें तो how it all started, कि कब लगा कि यार इसमें जाना है, ये करना है? अच्छा, I started ये सारी like blogging and content creation around like 4-5 years ago. Okay. लेकिन शुरू के जो 2 साल थे मैंने स्टार्ट इसलिए किया था because I shifted from O levels to intermediate system. तो वो सिस्टम का जो चेंज था, it caused a lot of personality changes as well.
and I had no friends in college. So what I used to do was I used to invest my time somewhere else, which was creating content, even though nobody was interested in it शुरू में. Okay. And I just thought कि I'm the it girl और सब मुझे देखेंगे, लेकिन 2 साल तक I was a failure. तो Okay. up until 2023 के almost like mid के अंदर I posted this university outfits की series. Okay. And I was like कि ठीक है, ये post करने के बाद कल I will just delete my social media because मुझे नहीं मज़ा आ रहा. And I'm obviously studying as well. तो what I did was कि I posted it, and then एक हफ्ते बाद, मैंने पता नहीं क्यों नहीं डिलीट किया, I have no idea, but मैंने रहने दिया. एक हफ्ते बाद people were like DMing me कि oh you're Roma Talat, and I was like what is happening and why is everyone like aware of who I am. And then my friends, my school friends, जिनसे मेरी बात बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, they started like talking to me इस बारे में कि oh you're getting viral and everything. It was really awkward at first. Okay. But it was not that awkward because मुझे शुरू से था कि मुझे famous होना है. And that's also another reason why I got into media, क्योंकि मुझे किसी भी तरीके से famous होना था, but in a positive way. तो जब वो चीज़ वायरल हुई, फिर I was like अच्छा ठीक है, people actually like me now. तो I started posting, और फिर 2024 के मिड तक I reached 1500 से 100K. Wow. तो वो एक चीज़ हुई, and then एक पॉइंट आता है जब वो हाइप ख़त्म होके हेटेड की तरफ चले जाती है. That's the point where I reached, and then I was like कि अब मुझे मज़ा नहीं आ रहा. I don't know why I kept going, but अब I'm here and like at a stable level now. अब वो चीज़ हेटेड वगैरह वाली चीज़ें I've filtered it a lot. Okay, so like, you it's don't nice. really think about all those negative things नहीं, anymore. not anymore, because अब 3 साल हो गए हैं, and I've realized a lot of things, and why people actually do it, so it doesn't really bother me anymore. Because obviously वो हर एक पार्ट तो होता ही है, जब भी आप कोई जर्नी अपनी शुरू करते हैं तो there are a lot of people जो आ जाते हैं नेगेटिविटी क्रिएट करने के लिए. बट अगर मैं उनकी बात ना करूँ, मैं कहूँ फॉर द पीपल अराउंड यू कि उनकी तरफ से कभी कोई डिस्करेजमेंट मिला हो, कोई क्रिटिसिज्म मिला हो कि क्यों ये काम कर रही हो? यार मेरी फैमिली से तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज दे नो कि मुझे ऐसी हरकतों में बहुत है. Okay. मैं हर चीज़ करने में मुझे बहुत वो होती है कि मुझे करना है. You're saying कि your parents always supported you, right? तो ये जो content आप create कर रहे होते हो, do they become a part of it as well? क्योंकि मैंने एक post में देखा था कि they were like your mom's clothes that you stitched in a different way. So do your mom also becomes a part of it कहीं ना कहीं? She like वो appear नहीं होंगी videos में, because I do not like showing my family on my feed at all, because I used to like शुरू में I used to like post my family on my stories a lot. Okay. But then people started being creepy to them. Oh. So I like completely removed my family from वो वाला account. They follow me somewhere else, but उस वाले account पे it's like कि मेरी कोई family है ही नहीं, because I do not want them to get dragged in सारा drama. तो they थोड़ी थोड़ी appearances होती हैं, and people know कि my mother ये वाला काम वो करती है and everything, and my sisters are this. लेकिन on a personal level वो कभी भी नहीं. ठीक है. So you are having such a impressive journey, very influential as well. तो as being an influencer, बहुत सारे brands के साथ आप collaborate कर रहे होगे, या आपके future plans होंगे कि आप करोगे. तो I want to know about those brands that you have collaborated so far. कैसा रहा उनके साथ काम करने का experience, या कौन कौन से brands थे? यार शुरू में मैंने बहुत छोटे छोटे ब्रांड्स के साथ काम किया था, बिकॉज आई वाज लाइक कि अच्छा मुझे अगर PR मिल रहे हैं तो मुझे करना चाहिए. बट देन आई रियलाइज कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस चीज़ में, और मुझे पैसे की ज़रूरत है. Okay. और मुझे बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है. तो क्योंकि अगर मैं गर्मी में खड़े होकर वीडियोज़ बना रही हूँ, थोड़ा सा डम फील होता है बाय द वे, जब आप ऐसे कैमरे के सामने खड़े हुए होते हैं ना. True. तो आई वाज लाइक अगर मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, व्हाई एम आई नॉट गेटिंग मनी फॉर इट. तो मैंने वो छोटे ब्रांड्स को थोड़ा सा हल्का कट ऑफ किया, एंड देन आई स्टार्टेड गोइंग फॉर ब्रांड्स. अच्छा, आई नेवर अप्रोच्ड अ ब्रांड माई सेल्फ. Okay. पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है, बट अ लॉट ऑफ पीपल, इवन लाइक बिग इन्फ्लुएंसर्स, दे उनका पूरा एक प्रॉम्प्ट टाइप होता है, आई डोंट नो, लेकिन वो पूरा एक अपना सॉर्ट ऑफ डिजिटल CV बनाते हैं इन लाइक अ पैराग्राफ फॉर्म, एंड देन दे सेंड इट टू ब्रांड्स कि हमें आप भेज सकते हैं फॉर Exactly. खुद उनको pitch सारी करते हैं, चीज़ें. yeah, right. तो वो मैंने कभी नहीं किया. तो आई वॉज ऑलवेज अप्रोच्ड बाय ब्रांड्स. तो like 2 brands जिनके साथ मुझे काम करने बहुत मज़ा आया था, दैट वाज मारिया सज्जाद, Okay. एंड देन ऑल्सो द ब्राउन स्टोर. जो सबसे पहला मेरे साथ हुआ था वो ब्राउन स्टोर के साथ हुआ था, बट दैट वाज अनपेड एज वेल. बट देन आई वाज लाइक कि एक तो इतना अच्छा ब्रांड है, ऊपर से मुझे एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, तो आई एम जस्ट गोना डू इट फॉर फ्री. Okay.
लेकिन फिर उसके बाद आई कोलैबोरेटेड विद देम 2 times दोबारा एंड देन दैट वाज पेड. लेकिन फिर मारिया सजाद का आई डिड रिसेंटली. एज अ फनी स्टोरी बिहाइंड इट, मुझे मारिया सजाद बहुत पसंद है, उसके कपड़े बहुत अच्छे हैं. तो आई ऑलवेज ड्रीम दिस थिंग कि मुझे कभी ना कभी तो इनके साथ काम करना है. अगर काम नहीं किया तो मैं अपनी शादी में तो इनके कपड़े पहनूंगी जरूर. अच्छा. लेकिन फिर मैंने देखा कि वो इतने एक्सपेंसिव हैं, तो इतना तो मैं नहीं कर सकती अफोर्ड. या तो फिर मैं किसी अमीर से शादी कर लूँगा, बोलूँ कि मुझे कपड़े यहाँ से मेक चाहिए. सेंस. या ठीक है. तो बट देन समहाउ आफ्टर लाइक 2 years ऑफ सॉर्ट ऑफ मैनिफेस्टिंग कि मुझे मारिया सजाद के साथ काम करना है, दे अप्रोच्ड मी सेइंग कि हमें ईद की कोलैबोरेशन आपके साथ करनी है. तो एंड दैट वाज पेड एज वेल, सो दैट वाज रियली नाइस. दैट्स ग्रेट. तो वैसे जब आपको कोई अप्रोच करता है एज अ ब्रांड, तो आप क्या चीज़ों का ख्याल रखती हो कि यार ये होगा तो ही मैं काम करूँगी या मैं नहीं करूँगी? आर देयर एनी सर्टेन थिंग्स? देयर आर थोड़ी बहुत चीज़ें एंड आई फील लाइक कि जब लोग कंटेंट क्रिएशन और इन्फ्लुएंसिंग के अंदर आते हैं, दे स्टॉप केयरिंग अबाउट द फैक्ट कि कौन सी चीज़ आपके ऊपर अच्छी लग रही है और कौन सी आपकी मोरल्स के ऊपर पूरी उतरती है. ठीक है, आपके स्टैंडर्ड्स होने चाहिए. आई नोटिस्ड हाउ लॉट ऑफ पीपल जो मेरी तरह नीश टॉपिक्स या नीश उस कंटेंट के अंदर काम करते हैं, लाइक फैशन एंड एवरीथिंग, दे एक्सेप्ट पेड PRs जस्ट बिकॉज उनको पे ऑब्वियसली पेड है, तो दे विल जस्ट वेयर एनीथिंग रिगार्डलेस ऑफ इफ इट इज एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी और नॉट. क्योंकि हम लोग की सोसाइटी पाकिस्तानी है, इस्लामिक वो भी बहुत ज़्यादा है. तो लाइक आई फील लाइक कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करें भले, लेकिन यू शुड वेयर क्लोथ्स जो प्रैक्टिकल हों. तो आई फील लाइक कि even if I try to like go for बहुत ज़्यादा westernized clothes, I will just not feel good about myself. तो अगर कोई ऐसा ब्रांड मेरे पास आता है जिनको उस तरह के कपड़े मुझे भेजने होते हैं जो मेरे मॉडल्स पे नहीं होते, तो मैं वो मना कर देती हूँ. एंड सेकंड थिंग कि वो पेड अगर नहीं है तो मैं नहीं करूँगी, बिकॉज ज़्यादातर ये होता है जो आपको पे कर रहे होते हैं वो फ्रीडम भी बहुत देते हैं, क्रिएटिव फ्रीडम बहुत देते हैं. लेकिन जो अनपेड होते हैं वो एक तो आपको कपड़े भेजेंगे, फिर वो आपको बोलेंगे कि हमें इतने सेकंड की 4 रील्स चाहिए, उसके साथ हमें जो है वो स्टैटिक पोस्ट भी चाहिए, और अगर सही नहीं हुई तो हम आपसे रीट्राई भी करवाएंगे, रीशूट करवाएंगे विदाउट क्योंकि वो कपड़े भेज रहे हैं. एंड लाइक जैसे हमारे पास कपड़ों की शॉर्टेज है, तो ये वाली चीज़ जो है ना मुझे बुरी लगती है. तो आई नेवर गो फॉर अनपेड एनीमोर. दैट्स मतलब मुझे सुन के गुस्सा आ रहा है. क्योंकि थोड़ा एम्बैरेसिंग होता है कि हम आपसे कपड़े थोड़ी मांग रहे हैं. Exactly. प्रमोटिंग योर ब्रांड एंड प्रमोटिंग योर कैंपेन, and we need money for that. Just like how you're paying. के बगैर इतनी ज़्यादा expectations is just weird. बोलते हैं कि हमें कपड़े वापस भेज दें अगर आपसे नहीं हो रहा, तो it's like थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल भी होते हैं ब्रांड्स. तो वो पहले से ही जस्ट करना होता है आपको, इससे पहले कि you actually commit to it. तो बुरे एक्सपीरियंसेस भी हुए, अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं. सबसे ज़्यादा मेमोरेबल कौन सा कोलैबोरेशन रहा? सक्सेसफुल उसमें या वैसे ही सक्सेसफुली कि मतलब जिससे खुशी हुई हो कि आई कोलैबोरेटेड, तो लाइक मैंने सही काम किया. मैंने एक तो मारिया सजाद दी है. इवन तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा तंग किया था पेमेंट के अंदर, तो उन्होंने 2 वीक्स तक मुझे पेमेंट नहीं दी थी, एंड आई हैड टू बेग देम कि मुझे पैसे दे दें आप. तो एनीवेज वो एक था. और इसके अलावा देयर इज दिस प्लेटफॉर्म, नॉट अ ब्रांड इटसेल्फ, लेकिन दे बेसिकली अलार्म ऑफिशियल, इफ यू नो अबाउट इट, तो वो सोर्स करते हैं कपड़े एंड दे सेंड इट टू यू. तो दे हैव बीन रियली रियली नाइस टू मी. ब्राउन स्टोर जो अलार्म ऑफिशियल है, एंड देन ऑल्सो मारिया सजाद. They're really nice to me. That's really nice. Very interesting to know about these things. वैसे हमने brand collaboration के ऊपर तो बात कर ली है, but you have your own business, Silknetics, again an amazing thing. So उसके बारे में tell me about it कि किस तरह वो business start हुआ. अच्छा, वो भी I started in Corona, जब मेरा first year start हुआ था. तो मुझे ना शुरू से ही बहुत शौक था कि I just do something for myself and I provide for myself. Even though बहुत छोटी सी चीज़ है, but then it grows a lot. तो I was in first year एंड मैंने गूगल पे सर्च किया था कि कौन से लाइक स्मॉल बिजनेसेस के आइडियाज़ हैं. तो उस वक्त ना स्क्रंचीज बहुत चलती थी, एंड लाइक फेस मास्क जो होते थे. तो और मैं उस वक्त जो हूँ ना वो स्टिचिंग सीख रही थी अपनी मामा से, और डिज़ाइनिंग वगैरह. तो आई वाज लाइक ओके ठीक है मैं ये करूँगी. तो आई स्टार्टेड द होल थिंग, और मैंने अगले दिन जाके अपनी मम्मी को बता दिया कि मेरा बिजनेस है अब, तो आप मुझे सिखा दें. तो फिर मैं सीखती रही, एंड देन फिर मैंने ऑर्डर्स देना स्टार्ट किए. और शुरू में I did not have any courier service, ना मुझे नॉलेज थी, तो मैं घर जा के देती थी. And I was like 16 back then, so I started at 16. And अब जाके I have like revamped my business 3 times, और अब now I'm working on a clothing line उसी के अंदर. ठीक है. So that is what you're planning for future, कि इस तरह से expand करोगे आप. ठीक है. तो challenges, कोई ऐसे major challenges आए हों इस journey के अंदर that made you feel like कि पता नहीं if I should continue it or not? In business or in my... No, as business.
अच्छा, बिजनेस के थिंग इज कि जो स्मॉल बिजनेस होते हैं ना, उनसे आपकी एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत कम होती है, इवन दो वी गिव मोर देन द बिग ब्रांड्स, क्योंकि क्वालिटी के ऊपर नहीं होता है. क्योंकि अगर एक तो आपका बहुत छोटा बिजनेस, ऊपर से अगर आप क्वालिटी भी कम रखेंगे तो कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होगा. तो वी आस्क फॉर मनी बिकॉज वी मेक एवरीथिंग आवरसेल्व्स. एक स्टार्टअप के अंदर और एक स्मॉल बिजनेस के अंदर जो आपने खुद स्टार्ट किया, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि आप सोर्स नहीं कर रहे कहीं से भी चीज़ें. बहुत सारे लोग बिजनेस के नाम पे बहुत सारी चीज़ें सोर्स करके और फिर उसको अपना लेबल लगा के जो है वो आगे बेच देते हैं. आई फील लाइक आई विल नॉट काउंट दैट एज अ प्रॉपर बिजनेस, बिकॉज उसके अंदर जो है ना प्रॉफिट और उसका तो कोई मतलब वो है ही नहीं, इक्वालिटी नहीं है. तो वो वाली चीज़ तो आई थॉट कि मुझे नहीं करनी, बिकॉज ऑब्वियसली आई वॉजंट अवेयर ऑफ सोर्सिंग वाली चीज़ भी. तो आई स्टार्टेड खुद से, क्योंकि एक तो मुझे ना मेरे अंदर ग्रैंडमा बोन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझे हर चीज़ बनानी होती है. तो मैं निटिंग भी खुद ही कर लूँगी, मैं क्रोशे भी खुद ही कर लूँगी, फिर मैं वो भी बेचूँगी. तो फिर मुझे ना मेरी हॉबीज़ होती हैं एंड देन वो बिजनेस पे कन्वर्ट हो जाती हैं. तो आई हैव बिन टोल्ड कि माई प्रोडक्ट्स आर रियली एक्सपेंसिव, इवन दो आई स्पेंड लाइक आवर्स मेकिंग इट, लेकिन अकॉर्डिंग टू देम इट्स रियली एक्सपेंसिव एंड दे कैन मेक इट एट होम. अच्छा, हाँ, दे कैन मेक इट एट होम बट दे डू नॉट हैव अ बिजनेस. तो हैंडमेड चीज़ों में तो इतनी एफर्ट्स लगती है, सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट? आई ट्राई माई बेस्ट टू लाइक कि मैं प्रॉफिट इतना नहीं रखूँ, क्योंकि फिर जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं. एंड जब शुरू में था तो आई यूज टू डू दिस थिंग कि मैं डिलीवरी चार्ज खुद पे करती थी. अच्छा, क्योंकि मुझे उनसे ना 200 to 250 जो है वो नॉर्मल चार्जेस होते थे पहले. तो आई यूज टू लाइक आस्क देम इतना ही, बट क्योंकि आई यूज TCS ना, तो वो कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता. ओके. तो आई वाज लाइक कि भाई मैं खुद से पे कर दूंगी जो ऊपर का है, लेकिन आई विल नॉट आस्क देम फॉर दैट एक्स्ट्रा मनी, बिकॉज हो सकता है फिर वो बोलेंगे DC इतनी ज़्यादा, तो मैं ऑर्डर ही नहीं करती. कैंसिल कर देंगे इस तरह से वो. मुझे ये सवाल से इंट्रीग कर रहा है बहुत ज़्यादा कि यू हैव योर ओन बिजनेस, यू आर ऑल्सो कोलैबोरेटिंग विद ब्रांड, सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हो, फिर हमारी यूनिवर्सिटी में इतने प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, हाउ डू यू हैंडल ऑल दीज थिंग्स टुगेदर? बिकॉज आई वर्क वेल इन प्रेशर. लाइक आई लाइक टू टायर माई सेल्फ टू द पॉइंट कि मुझे ऐसा लगे कि मैं फेलियर हो रही हूँ, फिर मुझे और मोटिवेशन मिलती है कि मैं काम Surely करना. hardworking, I must say. Not a lot of people like us are like that. इस एज ग्रुप में तो स्पेसिफिकली. बट या अभी तक जो मुझे पता चला, इट्स वेरी इम्प्रेसिव, वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू नो. और बिकॉज यू आर डूइंग सो मच, यू आर हैंडलिंग एवरीथिंग सो वेल, तो मुझे ना कुछ एडवाइसेस चाहिए फॉर पीपल ऑफ आवर एज. कि डू यू थिंक कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है ना कि उन्हें आज के टाइम पे अर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, हर किसी को होता है कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, नो मैटर व्हाट जेंडर यू आर. तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स बनेंगे, बट देन दे थिंक कि पता नहीं यहाँ कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए, किस तरह स्टार्ट लेना चाहिए. सो व्हाट डू यू थिंक आर दोज बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि आप एटलीस्ट स्टार्ट तो दो उस चीज़ का? अच्छा, फर्स्ट थिंग दैट यू सेड अबाउट अर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Indeed. ठीक है, इस एयर में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. आई स्टार्टेड अर्निंग लाइक एट द एज ऑफ 16 प्रॉपरली, बिकॉज उस वक्त मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था एंड आई वाज आल्सो वर्किंग एज अ फ्रीलांसर विद माय सिस्टर. ओके. तो तब आई रियलाइज्ड कि आपकी एज मैटर नहीं करती, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी लाइक अनसर्टेन. कुछ भी कभी भी हो सकता है. तो यू एक्चुअली नीड मनी, एंड मनी के साथ साथ यू नीड सम सॉर्ट ऑफ स्किल्स खुद से टू प्रोवाइड फॉर योरसेल्फ एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड सेफ्टी फॉर योरसेल्फ एज वेल. तो आई सजेस्ट, मेरे पास लाइक 2-3 चीज़ें हैं एंड आई टेल यू विद एग्जांपल्स. एक तो ये चीज़ कि बिजनेस वाली चीज़ इज़ नॉट फॉर एवरीवन, एंड वो वाली चीज़ दिस लाइक लाइन आई से टू माई सेल्फ ऑफन टाइम्स, क्योंकि बिजनेस इज़ वेरी अनसर्टेन अगेन, एंड हो सकता है कि आगे जाके द थिंग आई एम प्लानिंग अबाउट ओपनिंग लाइक अ प्रॉपर क्लोथिंग लाइन वो फेल हो जाए. तो आई विल नॉट ब्लेम माई सेल्फ कि आई वॉज एन अवेयर कि बिजनेस अनसर्टेन है. तो ये चीज़ हमेशा है कि यू कैन नॉट स्टार्ट समथिंग एक्सपेक्टिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट हमेशा. तो दैट सेम थिंग गोज़ फॉर मीडिया और वो सारी चीज़ें. यू कैन नॉट बिकम कोई भी डिजिटल क्रिएटर या कोई भी इस तरह की चीज़ एक्सपेक्टिंग कि आप जैसे ही अपना अकाउंट खोलेंगे पीपल आर गोना रन टू यू एंड बी लाइक ओ माय गॉड आई लव यू. इस तरह नहीं होता. ठीक है, एंड वो चीज़ अगर स्टार्टिंग में हुई भी तो वो एक पॉइंट इस तरीके का आएगा कि दे आर गोना स्टार्ट हेटिंग यू बिकॉज यू आर बीइंग लव्ड सो मच. तो वो वाली चीज़ भी, एंड नॉट एवरीवन कैन बेयर दिस. पीपल क्विट बहुत जल्दी. True. So I was gonna do that a couple of times too. Like I was so done with it, but then I decided that that's what people want. People put their insecurities on us, even though हमें कोई individual level पे और personal level पे कोई नहीं जानता. तो for them, we are like really successful people. Our lives are good. Our
सारी जिंदगी पढ़ाई एवरीथिंग इज गुड अकॉर्डिंग टू देम एंड फॉर देम बिकॉज दैट्स हाउ वी शो आवर लाइफ टू देम. लेकिन ऐसा नहीं होता है. एंड यू कैन नॉट बी वल्नरेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ऑल द टाइम एज वेल बिकॉज दैट एक पॉइंट पे आके वो आपके अगेंस्ट चीज यूज हो सकती डू है. गेट बोर के या एग्जैक्टली मतलब ट्रांसपेरेंसी इज नाइस बट वो इतनी भी अच्छी नहीं है कि पीपल स्टार्ट इन्वेडिंग योर प्राइवेसी बिकॉज फिर वही वाली चीज़ आती है. इफ़ यू नोटिस विद लाइक सेलिब्रिटीज, उनकी पर्सनल लाइफ इज़ नॉट पर्सनल एनी मोर. तो इफ़ अ पर्सन इज़ डेटिंग समबडी फॉर एग्जाम्पल और मैरिड टू समबडी और वो जो है वो इतना पब्लिक हुआ था वो सारी चीज़, तो जब उनका वो ख़त्म हो जाएगा रिलेशनशिप या मैरिज, पीपल आर गोना नीड एन आंसर फॉर दैट एंड अकॉर्डिंग टू देम दे हैव द राइट टू इट. क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपने इतनी पब्लिक की थी तो ऑब्वियसली एवरीवन इज पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी नाउ, सो दे एग्जैक्टली यू नो दे हैव द राइट टू नो कि वो व्हाई फिर क्रिटिसाइज भी करना शुरू कर Yeah. देते हैं, पॉइंट आउट करना शुरू तो कर आई देते फील है कि जब आप सोशल मीडिया स्टार्ट करना चाहिए इफ़ यू वांट टू, हैं. बट कीप इन माइंड कि आपके मोरल्स क्या हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि वायरल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन उनको ये चीज़ समझ नहीं आती कि आप किस सेंस में वायरल हो रहे हैं. और आप अगर ट्रेंड्स फॉलो करें तो ट्रेंड्स आर गोना डाई सून. ट्रू जब वो खुद ट्रेंड्स खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? यू गोना वेट फॉर अनदर ट्रेंड और यू गोना क्रिएट समथिंग जो आप दैट इज़ यू एंड यू नो ओरिजिनल. तो लॉट ऑफ पीपल थिंक कि द की टू यू नो बीइंग सक्सेसफुल एंड अर्निंग मनी वो ये है कि आप वायरल हो जाएं एंड जस्ट पोस्ट एनीथिंग यू वांट. हालांकि ऐसा नहीं है. एंड पाकिस्तान में इंस्टाग्राम इज़ नॉट मोनेटाइज्ड एग्जैक्टली और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता. तो दे फील है कि जितने व्यूज़ आएंगे जितने लाइक्स आएंगे उनको पैसा मिल रहा है, उनको नहीं मिल रहा है. तो जस्ट मेक श्योर कि आपके मोरल्स जो हैं वो बिल्कुल सही हों, आपकी नीश क्या है, एंड देन ऑल्सो बी रेडी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिलता है. एंड ऑल्सो बेग नहीं करें किसी को भी टू गिव यू अपॉर्चुनिटीज़. अब वो चाहे इस वाली फील्ड में हो, वो किसी भी जो है वो किसी भी फील्ड के अंदर हो. रिक्वेस्टिंग एंड लाइक वर्किंग हार्ड फॉर इट इज़ डिफरेंट देन बेगिंग समबडी टू गिव यू मनी. क्योंकि अब ऐसा ज़माना आ गया है कि वी कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आवरसेल्व्स. सो इफ़ यू हैव द फ्री विल कि आप अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, वाई डिपेंड ऑन समबडी हु इज़ आस्किंग यू फॉर समथिंग जो शायद आपके स्टैंडर्ड और मोरल से बहुत हट के हो. बिकॉज आई हैव नोटिस्ड एंड दिस इज़ वन थिंग दैट हैपेंड माई सिस्टर एज वेल. शी वॉज इन टू मैनेजमेंट, टेक्सटाइल मैनेजमेंट, बट उसकी जो शी वॉज अर्निंग पढ़ते हुए ही इतना ज़्यादा मोर देन वॉट द फील्ड की जॉब वॉज ऑफरिंग हर. तो शी वॉज लाइक कि मैं क्यों जाके किसी के सामने इस तरह की जॉब के अंदर आई विल गो एंड बैक टू देम कि आप मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा पे दें क्योंकि यू नो आई एम रियली गुड एट वॉट आई डू, बट दे आर नॉट गोना गिव यू द मनी क्योंकि ऑब्वियसली उसका एस्टिमेटेड पे रेट और स्टैंडर्डाइज पे रेट ही वही है. एग्जैक्टली तो वाई नॉट डू समथिंग यू आर यू नो इंटरेस्टेड इन मोर. हाँ वो इस तरह लगता है हमें कि यू नो हमारा वेस्ट ऑफ मनी हो गया क्योंकि हमने पढ़ी ये चीज़ थी लेकिन हम अर्न किसी और चीज़ से कर रहे हैं. तो शी वर्क्स इज़ अ राइटर नाउ. तो आई हैव नेवर सीन हर यू नो फीलिंग गिल्टी इस चीज़ का कि मैंने इतने सारे पैसे लगाए टू स्टडी टेक्सटाइल मैनेजमेंट बट नाउ आई एम वर्किंग एज अ राइटर और राइटर के लाइक मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग. तो आई फील है कि जॉब कोई सी भी छोटी बड़ी नहीं होती बट नेवर बेग समबडी टू गिव यू मनी इफ़ यू कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर योरसेल्फ. सो रोमा, आपने डिफरेंट ट्रेंड्स के ऊपर बात आप कर रहे हो कि ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं. इट्स एक्चुअली ट्रू कि हर वीक ही ऑलमोस्ट कोई ना कोई नया ट्रेंड आता रहता है. सो हाउ डू यू कोप अप विद दोस ट्रेंड्स? हाउ डू यू मैनेज? हाउ डू यू बेसिकली स्केजुलाइज कि ये ट्रेंड फॉलो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए? हाउ डू यू डू दैट? अच्छा मैंने अपनी पूरी इन 3 सालों में सिर्फ एक ट्रेंड बनाया था जो अभी तक चलता आ रहा है एंड दैट वाज यूनिवर्सिटी फिट चेक्स होता है. ओके तो वो अब मैं खुद करके थक गई हूँ क्योंकि अब मैं बहुत तंग आ गई हूँ, मेरे पास कपड़े भी ख़त्म हो गए हैं और अब मैं सोचती हूँ कि मैं फाइनल ईयर में क्या ही पहनूंगी जब मेरे पास कपड़े ही नहीं है. राइट बट आई नेवर रियली फॉलो ट्रेंड्स. इफ़ एनीवन हैज़ सीन माई फीड आई नेवर फॉलो ट्रेंड्स. मेरी 2-3 चीज़ें ही हैं जो मैं करती हूँ और मैं सिर्फ आई स्टिक टू देम बिकॉज आई फाइंड माई सेल्फ अनेबल टू फॉलो ट्रेंड्स एंड लाइक एक्चुअली एग्जीक्यूट देम वेल. सही मुझसे तो ट्रांजिशन वीडियो भी नहीं बनती है सही से. आई जस्ट फील डम जब मुझे ट्रांजिशन वीडियो बनानी. आई एम लाइक कि मैं हूँ ही नहीं. आई जस्ट कैन नॉट लुक ऐसा बिकॉज वो मैं नहीं हूँ. तो आई विल से कि इट्स ओके टू फॉलो ट्रेंड्स इवन दो आई डू नॉट प्रमोट द ट्रेंड्स वाली चीज़ क्योंकि बहुत सारे ट्रेंड्स इस तरीके के होते हैं दे जस्ट गेट फेमस बिकॉज उनका जो वायरल होने का वो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है तो पीपल जस्ट फॉलो इट. फॉर एग्जाम्पल जो दाना नीर वाला ट्रेंड था ओह या उसका लाइक देयर वाज नो यू नो हाथ पैर कुछ भी नहीं था उसका बट लाइक वो क्योंकि वो फेमस जल्दी हो जाता और वो हो भी क्या था तो पीपल आर लाइक डूइंग वाली सारी चीज़ें जस्ट टू यू नो
नॉट फील लेफ्ट आउट कि हाँ, उनके व्यूज आ रहे हैं, हमारे व्यूज नहीं आ रहे. हाँ तो एग्जैक्टली. वो वाली चीज़ है. इवन हमारी सोसाइटी के अंदर अगर कोई ऐसे अजीब सा ट्रेंड बना भी देता है तो उसको इतनी ज्यादा हाइप दे देते हैं कि वो बंदा मशहूर हो जाता है उस मतलब ट्रेंड की आप वजह हेट से. भी कर रहे हो, लेकिन यू आर नॉट रियलाइजिंग कि इफ यू आर हेटिंग द सेम पर्सन और द ट्रेंड इटसेल्फ, तो आप उसको इतनी ज़्यादा हाइप दे भी रहे हो, प्रमोट भी कर रहे हो एक बहुत तरीके ज़्यादा. से. स्पेशली जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स होते हैं, दे आर गेटिंग मनी फ्रॉम योर व्यूज एंड योर हेट्रेड. तो लाइक बी माइंडफुल, एटलीस्ट फिर आप अपने ही इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को पैसे दे दें. Exactly. Here we are moving towards the end of our conversation. तो influencer, as being an influencer, मैं ending इस चीज़ पे आपसे करवाना चाहती हूँ कि what do you think कि आज की society में जिस तरह से influencers different चीज़ों को promote कर रहे होते हैं, लोगों को क्या impact पड़ रहा होता है लोगों के minds के ऊपर. As you being an influencer, how do you manage कि यार जो content मैं create कर रही हूँ उसका positive impact ही पड़े मेरी audience के ऊपर. अच्छा, a lot of people often criticize कि मेरे content जो है ना वो education related नहीं है, but then I have to remind them कि that's a niche itself. I am not giving you guys education on Instagram. I am giving you guys tips and designing वाली चीज़. I'm shifting to designing बहुत ज़्यादा and बहुत ज़्यादा frequently, क्योंकि I post according to what changes I bring अपनी lifestyle के अंदर. तो आई थिंक कि हम लोग, क्योंकि वाला कल्चर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और उस कल्चर को हेट बहुत मिल रही है. Exactly. क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स आर ऑनेस्टली इन लाइक ऑल ट्रांसपेरेंसी, इन्फ्लुएंसर्स एक्ट डम अ लॉट. ठीक है, दे प्रमोट थिंग्स विदाउट नोइंग कि ये चीज़ सही है या नहीं है, विदाउट रियलाइजिंग कि पीपल एक्चुअली काउंट ऑन देम, विच इज स्टूपिड इटसेल्फ. पीपल डिपेंड इमोशनली एंड बाकी भी एस्पेक्ट्स में ऑन देयर फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स अ लॉट, नॉट नोइंग देम ऑन अ पर्सनल लेवल. एंड आई हैव हैड सो मेनी एक्सपीरियंसेस with fellow influencers, even from my own university even. You can never judge a person sahi se because they're behind the screen and they're completely different people. Especially जो बहुत बड़े influencers होते हैं, they are not exactly what you think they are. So I feel like जो idealize करने वाली चीज़ है उसको थोड़ा सा tone down होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो स्पेशली यंग लोगों पे जब उस यंग लोगों को बहुत ग्लैमराइज चीज़ दिखाएंगे ना, तो वो उतना ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे एंड दे विल फील बैड कि हमारी लाइफस्टाइल इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे आर लिविंग, नॉट नोइंग देम ऑन अ पर्सनल लेवल अगेन. तो आई फील लाइक कि आप उन लोगों को देखें और उन लोगों को फॉलो करें जो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक हैं. और अब जाके तो देयर आर लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स एंड जो हैं कंटेंट क्रिएटर्स जो बेसिकली उनका कंटेंट इसी चीज़ के अंदर है, बहुत नीश टॉपिक्स के अंदर. जैसे देयर इज दिस इंडियन influencer, but she's Muslim. I think she migrated from Pakistan to India. So she basically posts about her playlists वगैरह and also music production. So the people interested in that niche वो वहाँ जाएंगे. So you cannot claim कि that's not educating a category of people. Every content creator is educating and basically affecting the lives of people जो उस niche के हैं. तो just figure out कि आपको चाहिए क्या and get out of the trend वाली और viral वाली चीज़ें. Exactly. Because it's not good for your mental health, honestly. So you do think कि influencers बहुत ज़्यादा negatively भी influence करते हैं audience को, लेकिन do you also think कि बहुत एक्स्ट्रा लेवल पे अटैच हो जाती है ऑडियंस कि मतलब बहुत ही those influencers become just like a part of their life कि वो हैं तो हम हैं. तो what kind of message do you want to give to those people कि इतना emotionally attach होने की ज़रूरत है नहीं? Is it okay if I take names? Yeah, सही है. तो आई फील लाइक जो हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं ना बहुत सारे, दे नीड टू स्टॉप, लाइक दे नीड टू पुट अ स्टॉप खुद पे, बिकॉज इतना ज़्यादा हवा बना लेते हैं वो. आई डोंट नो द नेम ऑफ द यूट्यूबर जो अभी दुबई चले गए थे और पता नहीं क्या मामला हुआ था उनका, समथिंग रजब भट्ट. एग्जैक्टली दैट पर्सन. ही इज़ अ गुड लुकिंग डिसेंट मैन अगर वो थोड़ी से अपने कंटेंट को बेहतर करें, क्योंकि people idolize them a lot and also the whole astrology वाली चीज़. Exactly. Bunch of really beautiful girls, ठीक है, but they should know what they're showing to the people and what type of audience they're basically attracting, because most of the audience, if you open TikTok ना and उनकी videos आती हैं, most of the comments and likes are from people जो बहुत दूर दराज areas से होते हैं, rural, and they just have access to the internet and they just like it because the girl in front of them is pretty, and most of them are men. Right. So and if specifically because of the clothing as well. तो वो आपकी बॉडी पे भी बहुत ज़्यादा कमेंट करेंगे, ठीक है, वो हर तरीके के कमेंट करेंगे. कि जो एक सिस्टर है ज़ैनब, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बॉडी शेमिंग की जाती है, उसको इतना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, and she just turned 16. Now I get it कि some kids look
older than their age, but that's honestly not their fault if they're not putting any sort of effort to look अपनी एज से ज़्यादा बड़ा. बट एनीवेज आई फील लाइक कि आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है. इफ़ यू फील लाइक दैट्स द ओनली वे यू कैन गेट योर मनी फ्रॉम, देन यू आर गुड टू गो. बट अगर यू हैव थोड़ी सी सेंस ऑफ सैनिटी एंड यू फील लाइक कि मुझे थोड़े से लाइक लोग अच्छे चाहिए एंड यू वांट टू अर्न मनी दैट एक्चुअली काउंट्स एंड इज़ वर्थ इट, तो फिर चेंज द ऑडियंस. क्योंकि स्पेशली टिकटॉक इज़ जस्ट फॉर पीपल, not all of them because I'm on TikTok as well and a lot of us are on TikTok, लेकिन most of the people on TikTok Pakistan से are from rural areas. Most of them are men, jobless men. Exactly. ठीक है, and housewives जो भी obviously jobless हैं and they're from rural areas and they just have access to the internet and good phones. They have better phones than us. तो वो फोन जो है वो रोजाना जो है वो स्क्रॉल करते रहते हैं and they find beautiful girls and they keep commenting on it. Randomly बस चीज़ों को Exactly, देखते and that's रहना. where you're getting your money from. तो अगर ये मेरे साथ होता है तो मुझे तो बहुत बुरा फील होता कि आई एम बीइंग लस्टेड ओवर बाय men like this just so I can get money. So that's, I feel like that's थोड़ा सा मतलब wrong. उस पैसे का फिर आप सोचो ना कि हाँ, फायदा इसी भी तरीके तरीके से से क्या है. you see कि छोटे छोटे बच्चे वो ये सब काम करने लग गए हैं क्योंकि उनके जो हैं अच्छे यूट्यूबर राजा भट्ट एंड एवरीथिंग, Exactly. वो उनका एक स्पेसिफिक स्टाइल है ना, तो हमें भी वैसे ही करना है. And they're earning a lot of money. So Exactly. Why not follow them? So this was such an interesting end to our conversation. और आज का एपिसोड इसी से रिलेटेड था. हमारी गेस्ट सुपर टैलेंटेड एंड ऑल्सो सुपर इंस्पायरिंग रोमा तलत के साथ, वेयर शी शेयर्ड हर जर्नी, ऑल्सो द ब्रांड शी कोलैबोरेटेड विद, साथ ही उनका अपना ब्रांड सिल्क नेटिक्स, और साथ ही हमने ये भी बात की कि इन्फ्लुएंसर की बिहाइंड द सीन स्ट्रगल्स एंड मोमेंट्स क्या होते हैं. सो थैंक यू सो मच रोमा फॉर बीइंग Thank अ you so पार्ट much ऑफ for अस टुडे. having me. It was so fun. It was so fun, exactly. It was so interesting. आपके एक्सपीरियंसेस जान के मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया. So this was all for today's episode. फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में with a new guest and new insights. तब तक के लिए stay inspired and keep living your best life.